ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। মাইসেলফ বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, প্রগতি কলেজ অফ এডুকেশন, দাগাপুর, শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট, দার্জিলিং, ওয়েস্ট বেঙ্গল। সো আজকে আমরা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব। লাস্ট ক্লাসে গতকাল আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম 5E মডেল অফ টিচিং। সো তারই পরের যে সেকেন্ড মডেলটা ছিল সেই মডেলটা আমরা আলোচনা করব। সো লেটস গো, টুডে উই আর গোয়িং টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য হার্বার্টিয়ান মডেলস অফ টিচিং, অর্থাৎ হার্বার্টের মডেল অফ টিচিং আমরা আজকে আলোচনা করব। হার্বার্টিয়ান মেথড অফ টিচিং, B.Ed 4th semester, course 8, unit 3. আমরা যে গত ক্লাসে আমরা যে 5E মডেল ডিসকাশন করেছিলাম, ঠিক সেই 5E মডেলেরই তুলনামূলক একটা আলোচনা, যেটা হার্ভার্ড তার নিজস্ব মতে, নিজস্ব ধারণা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছে। অ্যাকর্ডিং টু হার্ভার্ড, he believed that new ideas, when properly presented to the students, become linked to existing ideas and from a system of associate ideas. He is also known as father of scientific pedagogy. Harvard advocates 5 formal steps of teaching. So he mentioned different 5 steps of teaching. The first step is preparation. So presentation, and then association, generalization, and last one is application. तो ये था जॉन हार्वर्ड का 5 steps. First is preparation, presentation, association, generalization, and application. So in the steps of preparation, in the steps of presentation, in the steps of association, what are the different activities of the learner, of the pupils? So let's go, we'll discuss about these different steps. First step is preparation. So a approach of relating new material to be learned to relevant past ideas or memories in order to give the people a vital interest in the topic under consideration. The teacher must prepare the students to receive new knowledge. Knowledge is to be linked with the previous knowledge of the students. Preparation, in fact, means the exploration of the pupil's knowledge, which leads to the aims of the lesson. Teacher's skill lies in leading the pupils to see that their knowledge is incomplete and that to conquer lies before them. Actually, preparation stage এ বলতে চেয়েছে একজন শিক্ষার্থী তার পুরনো যে জ্ঞান থাকে, তার যে পূর্ব জ্ঞান থাকে, সেই পূর্ব জ্ঞানের সহিত নতুন জ্ঞানের একটা সংমিশ্রণ করে নতুন কিছু শিখতে যায়। तो এক্ষেত্রে टीचर्स का जो रोल है, एक्चुअली टीचर्स का जो रोल है, टीचर्स मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू रिसीव न्यू नॉलेज. सो मैंने इससे पहले भी मैंने बोला था, एक्चुअली टीचर मस्ट प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स. एज ए टीचर हाउ यू विल प्रिपेयर योर लर्नर्स. सो ये आप माइक्रो टीचिंग में सीखे थे. सो अटेंशन क्रिएट करना है, मोटिवेट करना है, उसके बाद नॉलेज टेस्ट करना है, जो भी हो. एक्चुअली बेसिकली द क्रिएटिंग अटेंशन ऑफ द लर्नर्स एंड मोटिवेट योर लर्नर्स इज मेन फैक्टर्स. सो एज ए टीचर यू प्रिपेयर योर लर्नर्स बिकॉज आप कुछ देने जा रहे हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे. सो अभी लर्नर्स प्रिपेयर्ड हैं, दे कैन
दे कैन लर्न, जब वो प्रिपेयर हो ही गया है वो लोग तो ऑटोमेटिकली आपको सुनने के लिए एकदम रेडी है. सो नाउ यू कैन स्टार्ट योर लेसन. सो ये प्रिपरेशन स्टेज में आप फर्स्ट जो आपका एक्टिविटी है, यू शुड प्रिपेयर योर लर्नर्स एंड learners will construct the knowledge with the basis of previous knowledge. पुराना जो उसका नॉलेज है वो नॉलेज को लेके आज का नया नॉलेज के साथ वो लिंक करके न्यू कुछ नॉलेज उनको गेन करेगा. सो दिस इज प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. Presentation is that it is a new material by means of concrete objects or actual experience. Before the presentation of the subject matter, the aim of the lesson should be clearly stated by the teacher, as well as the students are engaged upon a common pursuit. The pupils must get some new ideas and people should be the active participation in the teaching learning process. एक्चुअली आप जो लेसन प्लान में सीखे थे, लर्निंग डिजाइन में सीखे थे, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन पार्ट. सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन. यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे दिया गया है. बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, द एम ऑफ द लेसन शुड बी क्लियरली स्टेटेड बाय द टीचर्स. आप लर्निंग डिजाइन प्रिपेयर करने के समय आपको पहले ही ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना है. आप पहले ही नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर रहा है. तो ये आपको बोला गया है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेजेंटेशन यू शुड फ्रेम योर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड यू शुड टारगेट योर एम एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेसन यू शुड मेंशन ऑल्सो. सो ये है आपका प्रेजेंटेशन में फर्स्ट काम. देन द पीपल्स मस्ट गेट सम न्यू आइडियाज एंड पीपल शुड बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ये ऑफ कोर्स पीपल्स दे आर ऑलवेज ट्राई टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट. सो आप क्लासरूम को अरेंज किया है, क्लासरूम को मैनेज किया है, अभी आप आपका प्रेजेंटेशन शुरू किया है, डिस्कशन शुरू किया है. दैट मीन्स पीपल सभी आपसे नया कुछ आइडिया गेन करेगा, नया कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेगा. गेन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस करेगा, मतलब अंडरस्टैंड होगा. आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को. दैट मीन्स स्टूडेंट्स टेक नॉलेज फ्रॉम यू. आपसे स्टूडेंट्स बहुत सारा नॉलेज ले रहा है, वो नॉलेज को ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स अंदर में प्रोसेस कर रहा है. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन पार्ट. नेक्स्ट इज एसोसिएशन. व्हाट इज एसोसिएशन? थ्रू assimilation of the new idea, through comparison with the former ideas and consideration of their similarities and differences in order to implant the new idea in the mind. एकदम सिंपल. आपको नॉलेज हो गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया है, आप सुने हैं, आप समझे हैं. नाउ ये जो आप अंडरस्टैंडिंग हो गया, आपका जो आप समझ गए हैं, इसी नॉलेज को आप अभी एसोसिएट कर रहा है, न्यू आइडिया से एसोसिएट कर रहा है. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर देम विथ अदर सेट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स. आप कैसे आप स्टूडेंट्स को जांच करेंगे, कैसे आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे, इवैल्यूएट करेंगे जो ये एसोसिएट हो रहा है. सो एकदम सिंपल. You can give some examples, you can give some problems to the students. जब देखिए ये स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं ऑटोमेटिकली, जब देखिए स्टूडेंट्स एकदम इजीली सिंपल बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है, मतलब एग्जांपल को टैली कर पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है, दैट मीन्स
वो लोग एसोसिएट कर पा रहा है आपका नॉलेज को। अगर जब एक स्टूडेंट्स एसोसिएट कर पा रहा है आपका नॉलेज को, दैट मीन्स वो समझ गया है, आपका जो टीचिंग था वो टीचिंग सक्सेसफुल की तरफ जा रहा है। सो दिस इज एसोसिएशन। नेक्स्ट इज generalization, a procedure especially important to the instruction of adolescents and designed to develop the mind beyond the level of perception and the concrete. In this step, the aim of lesson is achieved. This step involves reflective thinking because the whole knowledge learned in preparation is to be systematized, which leads to generalization, formulae, rules, etc. through comparison and association. Actually, now I am giving a simple example. Suppose during class, teachers discussing about A, B, C. So ये A, B, C जो टॉपिक था, ये टॉपिक टीचर डिस्कस कर रहा है। फर्स्ट लर्नर्स अटेंटिवली वो सुन रहा है, लर्नर्स उसको समझ रहा है। देन लर्नर समझने के बाद ऑटोमेटिकली ए बी सी से वो वर्ड फॉर्म कर पाएगा, ए बी सी को अप्लाई कर पाएगा जो ए बी सी से क्या क्या हो सकता है, एप्पल, बॉल, कैट, ये सब कर पा रहा है। लेकिन जनरलाइजेशन में आप देखिए स्टूडेंट्स जो नॉलेज आप सुने हैं, समझे हैं, अप्लाई किया है, उसी नॉलेज को सिस्टमेटिकली जनरलाइज कर पा रहा है। जनरलाइज मीन्स आप ये बोल सकते हैं जैसे कि आप डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं, आप क्लास दे रहे हैं, ये क्लास में आपके पास नॉलेज 100% आ चुके हैं, दैट मीन्स आप अभी प्रेजेंटेशन कर पा रहा है। जब तक आपके पास फुल कॉन्फिडेंस, फुल इंफॉर्मेशन नहीं आएगा आपके अंदर में, यू कैन टेक properly any class. So इसी steps में, these steps involve reflective thinking because the whole knowledge learned in preparation is to be systematized, which leads to generalization, formula, rules, etc. So this is generalization. And last one is application. Actually what is application, you know, application means the word meaning to apply something. So what about application? Using acquired knowledge not in a purely utilitarian way, but so that every learned ideas becomes a part of functional mind and an aid to clear vital interpretation of life. At this stage, the students make use of the acquired knowledge of familiar and unfamiliar situation. In this way, the new knowledge gained by the pupils will become permanent in the mind of the students and will not fade from consciousness soon. So ये है आपका लास्ट पार्ट। जैसे कि हम 5B मॉडल में देखे थे, लास्ट पार्ट में था इवैल्यूएशन। सो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सटेंड, इवैल्यूएशन, ये जो 5B मॉडल में था, लास्ट पार्ट में इवैल्यूएशन था, सेम इसका लास्ट पार्ट में एप्लीकेशन है। सो एप्लीकेशन मीन्स आप जो नॉलेज गेन किया है, फाइनली आपके पास फाइनली जो नॉलेज आया है, ये नॉलेज को आप कुछ एक्चुअल सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन में जाके उसको अप्लाई करना है, प्रॉपरली यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स कैन प्रॉपरली यूज़ आफ्टर गेटिंग 100% नॉलेज ऑफ द क्लास। अगर आपको 100% नॉलेज नहीं मिल रहा है, यू कैन अप्लाई प्रॉपरली, आपका थोड़ा गलत होगा, प्रॉब्लम होगा। सो ये जो मॉडल था आपका हार्वर्डियन मेथड ऑफ टीचिंग, इस मॉडल में नाउ आई एम गिविंग ब्रीफ समराइजेशन। सो इस मॉडल में था एक्चुअली कुछ आप सीखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सीखेंगे, समझेंगे, अप्लाई जनरलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे
बस ऑटोमेटिकली आप अप्लाई कर पाएंगे अगर टीचर्स क्लास सही से ले, अगर स्टूडेंट्स सही से वो क्लास अटेंटिव रहे हैं. सो दिस इज द Herbartian model, Herbartian methods of teaching. So today we learned about Herbartian model of teaching, and method and model both are like same. Preparation, presentation, association, generalization and application. So again मैं summarize कर दे रहा हूँ. Preparation, स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है. यस, टुडे विल लर्न समथिंग, बी प्रिपेयर्ड. प्रेजेंटेशन, जस्ट प्रेजेंट कर रहा है, टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है. उसी समय स्टूडेंट्स को जितना चाहे उनको सपोर्ट करना है, स्टूडेंट्स को जितना चाहे उसको मोटिवेट करना है. सो students can get proper knowledge from the class. Then association, student after getting proper knowledge of from the class, students can associate the information. Associate means वो लोग associate कर पाएगा so what he or she is learned. Generalization, after associate the knowledge from the class, students will generalize easily because they understood. And application means अभी लास्ट पार्ट आपका प्रिपरेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एसोसिएशन में भी स्टूडेंट्स है, जनरलाइज कर पाया. नाउ द टर्न टू एप्लीकेशन. सो दैट मीन्स एप्लीकेशन इज सिंपल. आफ्टर दैट students will apply and students will use the proper knowledge in different ways, different situations. So this about the Herbartian model of teaching. This about the Herbartian model of teaching. So thank you. Please stay at home, stay safe. Thank you so much.